Good morning, dear students. Today we are here with a grammar topic that is tenses. Okay, so we all know that there are three types of tense: past tense, present tense, and future tense. So let's move on. First of all, tenses. Tenses play a crucial role in the English language. It denotes the time an action takes place, whether sometimes in the past, in the present, or while take some time in the future. Okay, so whenever we talk about tenses, we in our mind first comes that is okay. There are three tenses, right? Past, present, and future. So we can say that tenses are almost based on time. Okay, कि आज पास्ट टाइम कल जो हो चुका है उसके बारे में हम अगर डिस्कस करें, प्रेजेंट टाइम और फॉर द फ्यूचर टाइम. फाइन. So while speaking in English, okay, or while we are talking the English language, the most important thing is we have to concentrate on our tenses. राइट. यूजुअली क्या होता है कि अगर हम हमारी मदर टंग गुजराती या हिंदी में जब हम बात कर रहे होते हैं, सो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई द टेंसेस. राइट, कि हम कल की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें पास्ट टेंस में सब कुछ यूज करना है. आज की बात कर रहे हैं तो जैसे मैं ये कल कर रही थी या आज कर रही हूँ या करने वाली हूँ या कर चुकी हूँ, इन दैट मैनर. बट while talking in English language, it is very difficult for the students and even many more people, right, to identify the tense. वो हमेशा tenses में गलती कर देते हैं. I don't know why कि वो बार बार confused हो जाते हैं tenses में. राइट, कि पास्ट टेंस है तो हमें क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर इंग्लिश स्पीकर्स. राइट, सो फ्रॉम अ जनरल व्यू ऑफ टेंसेस, दिस मॉड्यूल will go on to discuss each tense in detail with examples. So let's move on. First comes the simple present tense. Okay, अब simple present tense क्या है? It indicates an action which happens in the present but it isn't necessary for actions to happen right now. हम कह सकते हैं कि कोई भी एक काम या कोई भी एक एक्शन अभी प्रेजेंट में हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि वो एक्शन जस्ट राइट नाउ हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इट शुड बी इन प्रेजेंट, राइट, अभी या आज होना चाहिए वो काम. गेट इट? सो व्हाइल एनी ऑफ द एक्शंस व्हिच हैपेंस इन द प्रेजेंट फॉर्म at present time, we call it as present tense, but it is not necessarily required or it is not necessary that that action should be done right now. ऐसा नहीं है, आज होना चाहिए, अभी या इसी वक्त की श्योरिटी इसमें नहीं है. So simple present tense को indicates कैसे करेंगे? Unchanging situations, general truths, scientific facts, habits, frequently occurring events. सी बहुत बार कुछ ऐसे ट्रूथ जो होते हैं विच इज अनचेंज्ड. राइट, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करें, राइट, सम ऑफ द एग्जांपल्स अगर मैं दूं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. राइट, तो हम इसमें ये नहीं कह सकते या हम इसके ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते कि दैट अर्थ वाज रिवॉल्विंग अराउंड द सन और एनीथिंग. कुछ चीजें ऐसी है जो हमेशा प्रेजेंट में ही यूज होगी. We cannot make it in past के Earth was revolving around the sun, ऐसा नहीं हो सकता, या Earth will revolve around the sun, that is also wrong. So some of the scientific facts ले लो, general truth ले लो, या universal ऐसे कुछ statements ले लो, right? These are always used in present tense. Fine. और या तो फिर frequently occurring ऐसे कोई events ले लो. So we'll always use in such circumstances that present tense. Okay, हम हमेशा simple present tense ही ऐसे circumstances में use करेंगे जैसे मैंने एक universal truth कहा उस हिसाब से. Fine. So now let's start a table here. You can able to see a table of simple present tense and with a note here. So यहाँ पे मैंने 3 फॉर्म्स दिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस. ओके, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर बिकॉज अगर आपके टेंसेस क्लियर हो जाते हैं, सो इसके हेल्प से आपके एक्टिव पैसिव भी बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाएगा अगर टेंसेस आपके क्लियर होते हैं तो. ओके, सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड स्पेशली राइट in spoken English. Okay, while speaking English, it's very important कि आपके tenses correct जाए. तो अगर आप इस lecture में concentrate करेंगे, it will really going to help you out. And we are going to take the same example everywhere, that is start. Okay, हम I start से ही, मतलब यही same जो positive degrees positive में जितने भी आप देख रहे हो वही सारे हम start करने वाले हैं. ठीक है, अब देखो
पॉजिटिव में हमने दिया है आई स्टार्ट, फाइन। सो नेगेटिव में उसका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट स्टार्ट, ओके। एंड क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, डू आई स्टार्ट। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि लोग स्टूडेंट्स को ये इश्यूज होते हैं कि डू और डज कब यूज होता है। सो यू कैन फाउंड हियर, मैंने एक रिमेंबर में दिया है टेबल, you can see here, right, what it is given when we talk about a singular form, okay, we always use does, fine, except I। हमेशा याद रखना I एक एक्सेप्शनल केस है। I भले सिंगुलर फॉर्म है बट इवन दो I को हमेशा ट्रीट किया जाता है एज अ प्लूरल फॉर्म, गेटिंग। सो I के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, I के साथ हम यूज करेंगे डू, ठीक है। सो आई एक एक्सेप्शनल केस है, आई को हमेशा अलग से ही यूज कर, उसका एक पॉइंट ही याद रख लेना है कि आई के साथ हमेशा डू यूज होगा, ठीक है। अदर देन दैट जितने भी सिंगुलर फॉर्म है विल ऑलवेज यूज डस। या और एक बात कि जब भी हम सिंगुलर सेंटेंस होता है, कोई पर्सन, या वी कैन से व्हेन अ नाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म, उसमें उस सेंटेंस में हम एस, ईएस या ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते ही है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही राइट्स अ लेटर, तो ही इज अ सिंगुलर फॉर्म, तो इसलिए राइट नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी राइट्स, ओके। सो वहां पे एस लगेगा, ओके। और दूसरा अगर हो कि आई राइट अ लेटर, ओके, सो यहाँ पे आई राइट ही आएगा, फाइन, आई राइट्स नहीं आएगा, एस वहां नहीं लगेगा, ठीक है। सो जब आई की बात हो तो ऑलवेज टेक इट एज अ प्लूरल सेंस, उसको हमेशा प्लूरल सेंस की तरह ट्रीट करना है। सो व्हेनेवर इट इज आई वी ऑलवेज यूज डू, एंड व्हेनेवर इट इज अ प्लूरल थिंग्स वी ऑलवेज यूज डज, ओके। यू स्टार्ट, तो यू डू नॉट स्टार्ट और डोंट स्टार्ट। अब यहाँ पे यू हम सबके लिए यूज करते हैं, हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, यू इज अ कॉमन थिंग, फाइन। सो इसलिए हम यू के साथ भी हमेशा यू को हम हमेशा प्लूरल सेंस में ही ट्रीट करेंगे। सो आई और यू ये दोनों एक्सेप्शनल केस हो गए, ठीक है। इसके बाद ही इज अ सिंगुलर थिंग, तो ही डज नॉट या डजंट स्टार्ट आ जाएगा। शी इज ऑल्सो सिंगुलर, सो शी स्टार्ट्स, तो शी डज नॉट और डजंट स्टार्ट, गेटिंग। सी यू कैन फाइंड हियर कि हमने आई के आगे स्टार्ट लगाया है, एस नहीं लगाया, यू के आगे भी हमने एस नहीं लगाया है, राइट, हमने सीधा यू स्टार्ट कहा है। बट ही, क्योंकि ही सिंगुलर फॉर्म में है तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे, ही स्टार्ट्स करेंगे, ठीक है, ही स्टार्ट्स। जैसे मैंने बोला ही राइट्स, ही स्टार्ट्स, ओके। देन शी स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स, वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डू नॉट और वी डोंट स्टार्ट, फाइन। देन तो यहाँ पे वी स्टार्ट ही रहेगा क्योंकि ये क्या है, ये वी प्लूरल है तो उसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है। दे इज ऑल्सो प्लूरल, तो हम वहां एस नहीं लगाएंगे, तो वहां। सो इन शॉर्ट यही बात याद रखनी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगुलर थिंग वी ऑलवेज यूज डज, वी टॉक अबाउट प्लूरल थिंग वी ऑलवेज यूज डू। एक्सेप्शनल केस कौन सा है, आई और यू, फाइन। और क्वेश्चन यू कैन सी, आई डू आई स्टार्ट, फर्स्ट देखो यू है तो डू यू स्टार्ट, ही है तो डज ही स्टार्ट, तो डज ही स्टार्ट्स नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी DOES में हमने ES लगा दिया है, गेटिंग। डज में ऑलरेडी ES आ गया तो दो बार हम SS यूज नहीं करेंगे, ओके। तो ही स्टार्ट्स नहीं होगा, डज ही स्टार्ट्स नहीं होगा, डज ही स्टार्ट, डज शी स्टार्ट, डज इट स्टार्ट, डू वी स्टार्ट एंड डू दे स्टार्ट। Is it clear? So whenever we are talking about questions, we never use as behind verbs. Okay? अब फटाफट से इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, नीचे मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ दिया है, रिमेंबर में यू कैन फाउंड। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, गेटिंग प्लस V1, ओके। सो हमारा जो पॉजिटिव कैसे, वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट यानी आई, यू, he, she, it, we, they, okay, that is subject, and then V1 किसे कहते हैं हम, V1 जब present tense हो, हमारा verb 1 कहते हैं, V1 means verb 1, so when verb 1 is in present tense में होता है तो हम उसे V1 कहते हैं, फाइन। फिर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 यानी I यानी सब्जेक्ट, डू नॉट प्लस V1 यानी स्टार्ट।
क्वेश्चंस कैसे होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डू प्लस सब्जेक्ट यानी I एंड V1 एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ये टेबल क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सी, सबसे पहली बात, जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करें तो हमेशा याद रखना है कि कंटिन्यूअस में ing लगेगा, ठीक है, वो प्रेजेंट हो, वो पास्ट हो, वो फ्यूचर हो। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस टेंस, व्हिचएवर, ऑलवेज यूज ing फॉर्म, हमेशा ing फॉर्म यूज करना है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या है कि कोई काम अभी हो रहा है और होते ही जा रहा है, राइट। आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग का मतलब क्या, मैं पढ़ रही हूँ, यानी मैंने पढ़ के छोड़ नहीं दिया है, इट्स गोइंग इन अ कंटिन्यूअस मैनर, प्रोग्रेसिंग मैनर में। Okay, see, indicates an action which is in progress at the time of speaking. It combines the present tense with the continuous aspects. मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, तो इसका मतलब कि अभी तो मैंने जो बोला वो तो राइट है, बट इट इज अ continuous aspect है, ये एक progressing aspect है, it's going on, getting, it's going on, so that's why we call it as a continuous tense, ठीक है। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर से एक टेबल देखते हैं। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा ऑलवेज यूज ing, ओके, ये एक नोट। अब पॉजिटिव हम वही ले रहे हैं। अब देखो, वहां हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे तो हमने क्या बात की कि आई स्टार्ट, तो हमेशा याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी एम आर इज जैसे वर्ड्स यूज नहीं होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एम आर इज एंड वो सब क्या है, वो है मेन वर्ब्स, ठीक है। ऐसे बी फॉर्म या मेन वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कभी भी नहीं होंगे, इसलिए हमने देखा आई स्टार्ट, वी स्टार्ट, गेटिंग, यू स्टार्ट, ओके। तो और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि ऐसे बी फॉर्म्स या ऐसे मेन वर्ब्स इसमें हमेशा यूज होंगे ही होंगे, ओके। तो यहाँ पे दो चीज कंटिन्यूअस में याद रखनी है, वो कौन सी है, वन इज ing फॉर्म यूज होगा और दूसरा बी फॉर्म्स यूज होंगे, जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब्स। और मेन वर्ब्स कौन से हैं, दैट इज इज, एम, आर, ऐसे जो भी है, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस वाले हम वर्ड्स यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है, तो प्रेजेंट टेंस में एम, आर, इज, ये तीन चीजें प्रेजेंट टेंस में यूज होंगी। अब उसी का पास्ट टेंस होगा तो क्या होगा, आर का वर, इज का वॉज, getting, so let's start। पॉजिटिव फॉर्म देखो, I am starting, तो M और ing फॉर्म दोनों यूज हुआ। We all know कि I के साथ हमेशा M ही यूज होगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा, I am not starting, ओके, ये इसका शॉर्ट फॉर्म I am not starting। क्वेश्चन हो जाएगा am I starting, ओके। नेक्स्ट कम्स you are starting, ओके, उसका नेगेटिव you are not starting और you aren't starting और are you starting, in that manner, okay। So simple present tense और present continuous के डिफरेंस में और एक चीज ध्यान दी आपने, मैंने सिखाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, डू डज कहाँ लगेगा ये ध्यान रखना है। वहां इसलिए डू डज लगा रहे क्योंकि वहां कोई बी फॉर्म या मेन वर्ब है ही नहीं, गेटिंग, बट यहाँ तो मेन वर्ब हमारे पास है, बी फॉर्म्स यहाँ पे हमारे पास है, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट एम, इज, आर, ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जाएगा, फटाफट रिमेंबर देख लो। फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोला, विल यूज ing फॉर्म इन कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर विल ऑलवेज यूज ing फॉर्म। वर्ब सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी ing, वी यानी वर्ब ing, वर्ब के साथ ing फॉर्म लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, दैट इज आई, एम इज आर, यानी अगर आई है तो एम, यू है तो आर, ही है तो शी इज, और वी ing यानी वो ing यानी स्टार्टिंग। इज इट क्लियर? सो ये बहुत इजी लगा आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहली नोट मैं बता दूं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट टेंस वी ऑलवेज यूज हैज एंड हैव। हमेशा याद रखना है, हमने क्या क्या चीजें याद रखी थी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हम एक भी बी फॉर्म यूज नहीं करेंगे, यानी अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज यूज हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एम, इज, आर यूज करेंगे और ing फॉर्म यूज करेंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करेंगे हैव एंड हैज. ओके, सो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? सी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट that has present consequences. This tense is used to express actions completed recent past. ये past present perfect tense सी continuous में क्या था कि एक काम हो रहा है और अभी वो होना बाकी है, so it's going on. But present perfect tense में क्या है कि जैसे मैं I am studying और I have studied, getting I have studied यानी मैं अभी पढ़ के खड़ी हूँ या मैंने कुछ काम अभी रिसेंट में कंप्लीट किया है, तो वो चीज जो कंप्लीट हो चुकी है यानी उसकी श्योरिटी है दैट आई हैव डन दिस, एंड इन दैट मोमेंट आई विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इज इट क्लियर? मैंने क्या कहा? आई हैव डन दिस. मैंने ये नहीं कहा आई हैव डू और आई डू, ये गलत फॉर्म हुआ. आई हैव डन, हैव यानी परफेक्ट टेंस और डन, डन यानी ये क्या हो गया? V3, दैट इज वर्ब 3. ओके, और वर्ब 3 को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज पास्ट पार्टिसिपल. अभी पता चल जाएगा कैसे. लेट्स सी द एग्जांपल्स. अब स्टार्ट, आई स्टार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं. पॉजिटिव देखो, आई हैव स्टार्टेड. अब आप सोचोगे कि मैम ईडी लगा दिया तो ये तो पास्ट टेंस नहीं हो गया. नो बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि परफेक्ट टेंस में हम हमेशा V3 यूज करेंगे यानी वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल. हमें पता है V1, V2, V3, राइट? जैसे V1 में क्या आ गया? डू. ठीक है, V2 में क्या आ जाता है? क्या आएगा? अगर V1 यानी वर्ब 1 प्रेजेंट टेंस हुआ तो हम उसमें डू या डज यूज करेंगे. ठीक है, V2 वो हो गया हमारा पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे? डिड. और V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो हम उसमें यूज करेंगे डन. गेटिंग? तो अगर मैं स्टार्ट बोलूं तो V1 में स्टार्ट होगा. ओके, V2 यानी पास्ट टेंस में स्टार्टेड होगा और V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल में भी स्टार्टेड ही होगा. समझ में आया? सो दैट्स व्हाई ये पास्ट टेंस वाला स्टार्टेड नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल वाला स्टार्टेड है. ओके, सो जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं यानी हैज हैव के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा. मैं आपको बाद में एक टेबल भी दूंगी जिसमें वो तीनों फॉर्म्स कैसे होते हैं वो उसमें दिए हैं. ठीक है, आई हैव स्टार्टेड. ओके, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट स्टार्टेड और आई हैवंट स्टार्टेड. क्वेश्चन हो जाएगा हैव आई स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड, यू हैवंट और यू हैव नॉट स्टार्टेड और हैव यू स्टार्टेड एंड सो ऑन. ठीक है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है. फटाफट रिमेंबर देखो, विल ऑलवेज यूज V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल एंड व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट यूज हैज एंड हैव. जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं वेदर इट इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, we have to use has and have. but past में has और have यूज नहीं होगा बेटा, past में यूज होगा had. ओके, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं या तो यूज होगा has have. अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो had यूज होगा. अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ have यूज होगा. फ्यूचर परफेक्ट में has यूज नहीं होता. ठीक है, फटाफट से सेंटेंस फॉर्मेशन देखो. पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3. सब्जेक्ट यानी आई, यू, ही, शी, इट, हैज हैव एज इट इज. हाँ, दूसरी बात, अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर पर्सन विल यूज हैज. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल पर्सन विल यूज हैव. बच्चों को बहुत इश्यूज होते हैं कि हैज और हैव कहाँ यूज करना है. तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं हम यूज करेंगे हैज और जब हम प्लूरल की बात करते हैं हम यूज करेंगे हैव. बट यहाँ दो एक्सेप्शनल केस कौन से हैं जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखे थे, वही यहाँ पे है कि आई के साथ हमेशा हैव यूज होगा क्योंकि आई को हम एज अ प्लूरल टेंस ही यूज करेंगे. ठीक है, आई के साथ हमेशा हैव यूज करना और यू तो है ही प्लूरल फॉर्म में. ओके, तो उसे भी हम हैव ही यूज करेंगे. बाकी सब में ही, शी, इट, हैज, आई, यू, वी, दे, हैव. ठीक है, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव. Is it clear, all of you? Now comes present perfect continuous tense. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो,
हम जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यानी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट की बात करते हो तो अभी के जो भी यानी पास्ट टेंस का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट यहाँ यूज नहीं होगा फर्स्ट थिंग। फिर परफेक्ट आया तो हमें पता है परफेक्ट में हम हैज हैव यूज करते हैं। इसके बाद कंटिन्यूअस आया तो कंटिन्यूअस में हमें पता है कि हम आईएनजी यूज करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव और आईएनजी दोनों साथ में यूज करना है। बट इन दोनों को साथ में यूज करने के लिए हमें एक और वर्ड ऐड करना है, दैट इज बिन। ठीक है, जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हम क्या करेंगे, हम साथ में बिन लगाएंगे। परफेक्ट और कंटिन्यूअस के बीच में बिन लगेगा। ओके, अब ये है क्या, सी इंडिकेट्स दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। ओके, कोई चीज मैं कल रात से कोई काम कर रही हूँ या आई एम स्टडिंग, ओके, एंड आई एम स्टिल स्टडिंग, आई एम कंटिन्यूअसली डूइंग मेरी एग्जाम्स एंड इफ आई एम गोइंग ऑन, सो दैट इज I can say or we can say present perfect continuous tense. Is it clear? So फटाफट से देखते हैं I start का क्या होगा। देखो पॉजिटिव, देखो I have been starting. Okay, I subject, have been that is perfect tense और continuous में starting यानी ing फॉर्म लगेगा। Okay, I have not been starting और I haven't been starting और have I been starting. Okay, next you have been starting. ऑलवेज देखो यहाँ पे भी वही यूज करना है। हैज हैव कैसे यूज करना है, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। ओके, और साथ में क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूअस साथ में है तो हैव बीन और आईएनजी, हैज बीन आईएनजी। ओके, ये सब के लिए लागू है। ओके, फटाफट रिमेंबर देखो, विल यूज बीन व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड आल्सो यूज आईएनजी फॉर्म। ओके, जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं हमें बिन यूज करना है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस के बीच में बिन आएगा, यानी परफेक्ट क्या है हैज हैव, कंटिन्यूअस क्या है आईएनजी और उसके बीच में बिन। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी आईएनजी, यानी सब्जेक्ट यानी आई यू हैव आई यू ही शी इट, ओके, वी दे, देन हैज हैव बीन प्लस वी आईएनजी यानी स्टार्टिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, फाइन, इन दैट मैनर। नेक्स्ट चलो, अब ये सारे फॉर्म्स हमारे कंप्लीट हो गए सिंपल प्रेजेंट के। अगर वो क्लियर हो गया तो ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा क्योंकि अब ये सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब हम आ गए सिंपल पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस यानी जो चीज हो चुकी है, एक डिफाइनाइट टाइम में जो चीज कंप्लीट हो चुकी है उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस। मैंने कल ये कर दिया, ओके, सो वो चीज मेरे से हो चुकी है, दैट एक्शन विच इज कंप्लीटेड एट अ डिफाइनाइट टाइम इन द पास्ट। ओके, अब क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट देखा था, मैं बार बार सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को अब कंपेयर करती जाऊंगी। ओके, सिंपल प्रेजेंट में हमने कहा था आई स्टार्ट, यू स्टार्ट, ही स्टार्ट, ओके, शी स्टार्ट्स, सॉरी ही शी, इट में स्टार्ट्स आया था, वी स्टार्ट एंड दे स्टार्ट। सिंपल पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आई स्टार्टेड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल V3 वाला नहीं है, ये V2 है। ओके, ये V2 है, V2 स्टार्टेड यानी ये पास्ट टेंस हुआ। ओके, आई स्टार्टेड। तो अब नेगेटिव में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में हम डू और डज यूज कर रहे थे, राइट, बट पास्ट टेंस बहुत इजी है, इसमें सब जगह डिड डाल देना है, यानी चाहे वो सिंगुलर हो फॉर्म या चाहे प्लूरल पर्सन हो, राइट, सिंगुलर है या प्लूरल, हमें सब में क्या डाल देना है, डिड डाल देना। ओके, सो ये तो बहुत इजी हो गया, उसमें तो मैं देखना पड़ रहा था डू डज कहाँ यूज करना है, यहाँ पे ये देखना नहीं है, विल पुट डिड। डिड क्या है, पास्ट टेंस है, V2 है, डिड भी V2 है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 क्या हो गया हमारा, डू डज, V2 डिड और V3 डन। ओके, तो आई स्टार्ट, आई डिड नॉट स्टार्ट और आई डिडंट स्टार्ट। यूजुअली हम डिडंट कहते हैं पर एक्चुअली इसे डिडंट कहते हैं। ओके, आई डिडंट स्टार्ट, डिड आई स्टार्ट, यू स्टार्टेड, यू डिड नॉट स्टार्ट। पर पीछे याद रखना, हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव में भले हम सब जगह ईडी यूज कर रहे हैं, बट नेगेटिव में क्योंकि हम डिड डाल रहे हैं तो डिड से ऑटोमेटिकली वो चीज पास्ट टेंस में हो जाती है। गेटिंग, अगर आप उसमें भी डू डाल रहे हो, डू डज सिंपल प्रेजेंट में, तो वो चीज ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में हो जाती है। वैसे ही यहाँ डिड लगाने से हमें पता चल जाता है कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें पीछे स्टार्टेड नहीं डालना है।
अगर हम बी फॉर्म या मेन वर्ब के साथ अगर ईडी डाल देते हैं पीछे वर्ब में तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। स्टार्टेड यहाँ पे फिर वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा और आपके सेंटेंस फॉर्मेशन रॉन्ग होगा। गेटिंग? सो आई डिड नॉट स्टार्ट और आई डिडंट स्टार्ट। डिड आई स्टार्ट? यू डिड नॉट स्टार्ट और you didn't start. You didn't started. It's wrong. Okay. फटाफट से रिमेंबर देखो, will use did when we talk about simple past tense for both singular and plural. ठीक है? Subject formation, sentence formation is same as simple present tense. सिर्फ क्या फर्क है कि हमने subject plus V1 simple present tense में डाल रहे थे, यहाँ V2 डाल रहे हैं। V1 यानी I start, V2 यानी I started. Is it clear? Past continuous हमने क्या याद रखा था, रूल्स क्या याद रखे थे, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये याद रखा था, एक तो बी फॉर्म यानी मेन वर्ब्स यूज होगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो मैं कौन से वर्ब्स यूज करूंगी, मेन वर्ब्स, दैट इज एम आर। बट ये पास्ट टेंस है तो इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर, दो ही चीज होगी, वॉज और वर। इज का वॉज और आर का वर। इज सिंगुलर है तो was is also singular, are प्लूरल है, were प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप were यूज करोगे, WERE। यूजुअली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो were बोलते हैं, WHERE were होता है बेटा, WERE were होता है। ओके, सो ये क्लियर। अब कंटिन्यूअस है तो हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म, बस इतना ही याद रखना है, बाकी सब सेम है। जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। सिर्फ क्या याद रखना है, पास्ट है इसलिए वॉज वर, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी। ओके, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इंडिकेट्स एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक्शन ऐसी है जो पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी वो कंटिन्यूअसली चल रही है। पास्ट यानी कल अगर शुरू हुई और आज भी चल रही हो। ओके, सो दैट वी कॉल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द पॉइंट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इज दैट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन वाज आल्सो इन द पास्ट, सो इट डज नॉट कंटिन्यू एट दिस मोमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आप तो ये बोलोगे कि मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो रही है और अभी तक चल रही है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसे कैसे। तो दोनों के बीच में एक माइनर डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई चीज अगर पहले से शुरू हुई हो और अभी भी शुरू है या अभी भी कंटिन्यूअस है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बट पास्ट कंटिन्यूअस में कोई चीज अगर कल सुबह मैं बोलूं कि कल सुबह मैंने ये किया, ओके, मैंने ये काम शुरू किया और वो काम मुझे खत्म करते हुए कल शाम हो गई, तो यानी इन शॉर्ट ये जो एक्शन है वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है, इट्स नॉट कंटिन्यूअसली प्रेजेंट टुडे। ओके, तो वो काम शुरू हुआ, कंटिन्यूअस चला, बट वो पास्ट में ही फिनिश हो जाता है। ओके, वो अभी एट दिस मोमेंट पे नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फटाफट देखो, पॉजिटिव आई स्टार्ट का क्या हो जाएगा, आई वॉज स्टार्टिंग, क्योंकि वॉज क्या हो गया, was is singular। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना I were starting नहीं होगा, ठीक है, यहाँ was ही यूज होगा। ओके, हाँ, you के साथ you were starting, he is singular so he was starting, she was starting, it was starting, we plural तो we were starting, they were starting। ओके, नेगेटिव देख लो, I was not और I wasn't starting। क्वेश्चन, was I starting, you were not or weren't starting, were you starting, and so on। ओके, remember देखो, will use was and were and ing form in the past continuous। okay, and subject formation क्या है देखो, subject plus was were plus ing, यानी subject हमारा I you he, was were as usual और ing यानी starting। ठीक है, दूसरे में subject plus was were not plus ing and third one was were plus subject plus ing and so on। ठीक है, अब आता है past perfect tense। Past perfect tense क्या है देखो, past perfect indicates a past action that had already finished when another action happened। ठीक है, past perfect tense यानी जैसे मैंने कहा कि कल मैंने कोई काम शुरू किया और वो काम for surely खत्म हो चुका है कल ही, तो ये हो जाएगा past perfect tense। अगर वो काम चल रहा था तो वो continuous था, अब वो उसके बाद खत्म हो गया, दूसरा एक्शन, दूसरा काम शुरू हो गया, तो I can say this work has done।
ओके, सो वो वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हो गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में वी हैव डिस्कस कि हम ऑलवेज यूज करेंगे हैव हैज, तो पास्ट परफेक्ट में हम यूज करेंगे हैड, ठीक है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ये मैंने कहा था कि हैज हैव के साथ हम यूज करेंगे V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो इन सेम मैनर पास्ट परफेक्ट में भी हम हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी आई स्टार्टेड का क्या हो जाएगा, आई हैड स्टार्टेड, ओके। हाँ, हैज हैव में ये याद रखना था कि हैज सिंगुलर के साथ यूज होगा, हैव प्लूरल के साथ यूज होगा, बट आई के साथ हमेशा हैव यूज होगा, ये सारा याद रखना था। यहाँ ऐसा कुछ याद नहीं रखना है, पास्ट टेंस इज वेरी इजी, ओके। पास्ट में सब कुछ सिंगल ही है, जैसे डिड सबके साथ यूज कर सकते हैं, वैसे हैड भी, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल वी कैन यूज बोथ, ओके। हैड हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ओके। सो आई हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ये स्टार्टेड वर्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल है, ये V3 फॉर्म है, ओके। आई हैड नॉट स्टार्टेड और hadn't started, had I started and so on, ठीक है। रिमेंबर देखो, will use had for both singular and plural and also V3 when we talk about perfect, V3 यानी past participle और sentence formation। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं आप कि ये स्टार्टेड बहुत कंफ्यूज हो रहा है पास्ट पार्टिसिपल में, तो मैं आपको दूसरे भी एग्जांपल दूंगी सो दैट कि ये पिक्चर क्लियर हो जाए, ओके। नाउ कम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रूल्स देखे वही सेम रूल्स है, सिर्फ पास्ट का पास्ट में और प्रेजेंट का प्रेजेंट में। पास्ट है तो पास्ट टेंस ही हम यूज करेंगे, गेटिंग। तो पास्ट परफेक्ट है तो क्या यूज करेंगे, हम हैड यूज करेंगे। कंटिन्यूअस है तो क्या यूज करेंगे, हम ing यूज करेंगे। बट मैंने क्या कहा था, परफेक्ट और कंटिन्यूअस आए तो हम साथ में क्या यूज करते हैं, बीन डाल देंगे, ठीक है। सेम रूल्स। बट अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या, इंडिकेट्स अ पास्ट एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू टू हैपन आफ्टर अनदर एक्शन एंड टाइम इन द पास्ट, namely this tense tells us how long the action had continued. The duration of the action is emphasized more in this tense. अब इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कब हम बोलते हैं कि जब एक पर्टिकुलर एक्शन खत्म हो जाती है तो वो परफेक्ट है, कि हाँ ये श्योरिटी है कि ये खत्म हो जाती है। बट व्हेन वी टॉक परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस वो भी पास्ट में, तो हम कह सकते हैं कि यार कल तो मैं पढ़ने बैठा तो आई थिंक मैं अराउंड 4 घंटे पढ़ा, गेटिंग। तो वो 4 आवर्स आपको कैसे पता चले कि आप इतने बजे से बैठे, कंटिन्यू किया, इतने बजे आपका खत्म हुआ, तो वो चीज जो खत्म हो गई, आप जो आज एम्फोसाइज कर रहे हो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। तो अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस बोलना है तो आप उसी तरीके से हैड बीन, स्टार्टिंग या ऐसे ही वर्ड्स यूज करोगे। तो ये इन शॉर्ट एम्फोसाइज करती है कि कोई भी चीज, कोई भी काम कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लग गया, ओके। ये उस पर एम्फोसाइज करती है। फटाफट से सेंटेंस देखो, जैसे मैंने कहा आई स्टार्टेड का क्या हो जाएगा, आई हैड परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड। मैंने कहा था परफेक्ट और कंटिन्यूअस के बीच में बीन लगेगा, तो आई हैड बीन स्टार्टिंग, ओके। उसका हो जाएगा आई हैड नॉट और हैडंट बीन स्टार्टिंग और हैड आई बीन स्टार्टिंग, ठीक है, एंड सो ऑन। रिमेंबर देख लो, विल यूज हैड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये मैंने बता दिया। साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है, और क्योंकि ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस है तो हम बिन भी यूज करेंगे, ओके। सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट यानी आईयूवी ही थे एंड हैड बिन और आईएनजी, ओके, नॉट बिन आईएनजी, हैड सब्जेक्ट बिन आईएनजी, इज इट क्लियर। चलो अब हमारे दो इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो गए, वन इज प्रेजेंट टेंस और अदर इज पास्ट टेंस। अब इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट है इज फ्यूचर टेंस, ओके। हमेशा एक बात याद रखनी है, इसकी नोट ये है कि फ्यूचर टेंस में हम हमेशा विल शैल यूज करना है, सिंपल है, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो कंटिन्यूअस है, चाहे वो परफेक्ट है, व्हिचएवर, विल यूज होगा ही होगा, विल एंड शैल, ओके। सी विल और शैल में यूजुअली कंफ्यूजन होता है कि कैसे यूज करना है, तो मैं बता दूं, विल इज वी कैन से कि जब हम कोई काम श्योरिटी के साथ करने वाले होते हैं तो हम उसे विल यूज करते हैं। बट व्हेन वी हैव सम डाउट या ऐसे कुछ, वो कहता है ना कि 50-50 ऐसा लगता है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम लगाते हैं शेल, ओके। बट यूजुअली हम विल ही यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे विल ही बताया, बट यू कैन इवन यूज शेल, ओके। अब सिंपल फ्यूचर टेंस यानी जो एक्शन या इवेंट
राइट, फ्यूचर टाइम में होने वाली है या वो शुरू होने वाली है, राइट। सो द सिंपल फ्यूचर टेंस इज आल्सो यूज्ड टू मेक अ प्रेडिक्शन और टू शो एबिलिटी, इंटेंशन और डिटर्मिनेशन। मैं कल ये करूंगा या मैं ये करने वाला हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूं। तो ये सारी प्रिडिक्शन हो गए कि कल मेरे पास इतना इतना काम है या मुझे ये कंप्लीट करना है। कितना होगा, कितना करने वाले हो, वो तो फ्यूचर पे डिपेंड है। ओके, लेट्स सी। आई विल स्टार्ट, हमेशा याद रखना यहाँ पे ना ही एस लगेगा ना ही और कुछ, यहाँ पे सीधा आई विल स्टार्ट, ही विल स्टार्ट, वी विल स्टार्ट, सब में विल। ओके, नो सिंगुलर नो प्लूरल नथिंग। I will not start, तो I will not का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा I won't start and will I start, fine and so on। फटाफट रिमेंबर देखो, will use will shall when we talk about future tense, और फिर नीचे दिए है सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, चलो ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या कहा था मैंने कि कंटिन्यूअस में will use always ing, ओके, और फ्यूचर है तो will use होगा, ठीक है। बट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इंडिकेट्स एन एक्शन व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस एट सम डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर, राइट। जैसे मैं बोलूं कि कल मैं ये काम शुरू करूंगा, बट आई थिंक उस काम के लिए मुझे 3-4 घंटे लग सकते हैं या मेरा पूरा दिन चला जाएगा। सो व्हेनेवर वी प्रेडिक्ट समथिंग और वो एक डिफाइनाइट टाइम तक वो चलेगा इन फ्यूचर, सो देन वी कॉल इट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई स्टार्ट, आई विल स्टार्ट का क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखना कि जब भी फ्यूचर और कंटिन्यूअस टेंस साथ में हो तो यहाँ पे एक चीज हम यूज करेंगे, दैट इज BEB, ठीक है। सो क्या होगा? आई विल बी स्टार्टिंग, हमेशा ये याद रखना है कि फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी यूज होगा। सिंपल फ्यूचर में विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी ing, ये याद रखना। I will be starting, you will be starting, he will be starting and so on, okay। I will not be starting और I won't be starting, will I be starting, ठीक है। यह सब जगह बी यूज होगा, ये याद रखना है, फाइन। रिमेंबर में यही है, will use will shall be and ing form, okay, will shall be ing form, okay। चलो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया वापस। मैंने पहले भी बोला था सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो मैंने आगे दोनों में ही बोला था कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा हैज हैव यूज करते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा हैड यूज करेंगे, और जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो हमेशा हैव ही यूज होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर टेंस में कभी भी हैज यूज नहीं होता, हम हमेशा हैव यूज करेंगे, ठीक है। फटाफट देख लो। अब हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? इंडिकेट्स एन एक्शन दैट आर कंप्लीट और फिनिश्ड, दिस एक्शन हैव नॉट येट अकर्ड बट विल अकर एंड विल बी फिनिश्ड इन द फ्यूचर। कोई चीज हमें पता है, जैसे हमारी एग्जाम्स आने वाली है, राइट, वो एग्जाम्स कौन से डेट से स्टार्ट होने वाली है और कब खत्म होने वाली है, उसके पूरा टाइमिंग प्रॉपर्ली हमें पता है, ओके, श्योरिटी है, तो हम उसे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। लेट्स सी पॉजिटिव देखो, आई विल हैव स्टार्टेड। अब दूसरी बात मैं भूल गई बताना कि परफेक्ट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, मैंने बोला है, तो विल ऑलवेज यूज V3। कौन सा वर्ब यूज होगा? V3, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। आई विल हैव स्टार्टेड, I will not have started or I won't have started और will I have started, ठीक है। You will have started, तो will plus have plus V3, okay। Will not have V3, will subject have V3, ये हो गया हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन, ओके। चलो नेक्स्ट, अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो क्या याद रखना है? फ्यूचर है तो विल यूज होगा, परफेक्ट है तो हैव यूज होगा, कंटिन्यूअस है तो ing यूज होगा। बट मैंने क्या कहा था कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस के बीच में क्या यूज होता है? बिन, ओके, वही रूल्स है, सेम रूल्स, ओके। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस indicates a continuous action which will be done at a certain time in the future, राइट, एक सर्टेन टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट होने वाली है, वो हमें श्योरिटी है कि वो चलेगी भी, कंटिन्यूअस भी होगी, बट वो सर्टेन टाइम में फिनिश भी हो जाएगी, तो वी कॉल इट एज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। लेट्स सी
I will have been starting. See, will यानी future, have been perfect, starting continuous tense. I will have been starting. I will or I won't have been starting, or will I have been starting. You will have been starting. You will not or won't have been starting, or will you have been starting, and so on. ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन यू कैन सी इन द रिमेंबर टेबल. नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बोला कि आपको अगर पास्ट पार्टिसिपल्स में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ईडी पास्ट में भी यूज होता है, इसमें भी होता है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूं तो इट वुड बी वेरी इजियर यू टू आइडेंटिफाई. फाइन. अब देखो, अवेक अगर मैं बोलूं आई अवेक, ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया, V1 हो गया आई अवेक. ओके, उसका पास्ट टेंस मुझे क्या करना है, तो आई अवोक. ठीक है, पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, आई अवोक. और उसका अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल करना है तो क्या होगा, आई अवोकन. समझ में आया. सो अवेक, अवोक, अवोकन, तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, राइट, ये होगा अवोकन. अगर मैं बी बोलूं, बी का मुझे करना है, तो V1 इज बी. V2 यानी पास्ट उसका क्या हो जाएगा, बी का वॉज और वॉर. ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, बिन. ठीक है, इसलिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, बिन. ओके, क्योंकि हम हमेशा परफेक्ट के साथ यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, तो हमें भी यहाँ करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी यूज बिन. ओके, पर क्योंकि कंटिन्यूअस है तो हमें मेन वर्ब के पीछे हमें आईएनजी लगा देना पड़ेगा. सो स्टार्टिंग हो गया. ओके, दूसरा मैं बताती हूँ, जैसे बिगिन का हो जाएगा V1 बिगिन यानी प्रेजेंट का बिगिन, पास्ट V2 यानी बिगन, और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा बिगन. ओके, सो इस तरीके से हमारा अगर डू का ले लेता है, तो जैसे मैंने कहा कि वर्ब में फर्स्ट वर्ब में होगा V1 में होगा डू या डज, पास्ट में होगा डिड, और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा डन. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर स्टार्ट है तो स्टार्टन तो होगा नहीं, en तो लगेगा नहीं, इसलिए हमें उससे स्टार्टेड ही रहना पड़ेगा. सो V1 स्टार्ट, V2 स्टार्टेड, V3 स्टार्टेड. ओके, जैसे ड्रीम है, V1 ड्रीम, V2 ड्रैम्ड. ओके, ड्रैम्ड, आई ड्रैम्ड. ओके, तो V3 भी उसका ड्रैम्ड होगा, ड्रैम्टन नहीं होगा, पीछे en नहीं लगेगा. फाइन. ड्राइव का देख लो, ड्राइव, ड्रोव, ड्रोवन, इट, एट, इटन, fall, fell, fallen, and so on. Fine. So I think अब आपको वो past participles की वो फंडा क्लियर हो गया. So finally I'm ending my lecture here, and I hope कि आपको tenses अच्छे से समझ में आ गए हो. And I want to give some homework now, कि मैंने जैसे आपने इतने सारे tables देखे, वैसे ही आपको सारे tables बनाने हैं. Okay. जैसे आई स्टार्ट एक एग्जाम्पल हमने लेकर, आई स्टार्ट, वी स्टार्ट, ही स्टार्ट. ओके, इन दैट मैनर हम आगे गए, एंड देन आफ्टर हमने जिस तरीके से वो पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस के टेबल बनाए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वैसे आपको ये टेबल बनाना है. मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. यू कैन गो विथ आई ड्राइव. ठीक है, आपको आई ड्राइव से पूरे जितने भी मैंने अभी तक आपको टेबल्स दिखाए, वैसे सारे टेबल्स आपको खुद करने हैं. दिस इज योर होमवर्क. ओके, होप यू गॉट योर होमवर्क वेल. नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर.